Hello, welcome back dear children to the Knowledge series by Amit Publishing House. We are doing book 4 and this is your English reader book. I am Vandana and here this is the cover page of your book Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So children, today we are going to do the last chapter of your book and it is chapter number 15 and the name of the chapter is The Farmer and the Money Lender. So let's start with the chapter dear children. So in this chapter, this is a story of a wicked money lender. Money lender मतलब कौन होता है? वो इंसान जो पैसे लोगों को उधार पे देता है. So this is a story of a wicked. Wicked means बहुत ज़्यादा ऐसा money lender बहुत ज़्यादा वो लालची आप कह सकते हो. So this is the story of a wicked money lender who trapped a poor farmer in his vicious trap. But the farmer somehow managed to come out of it. But the farmer had to give up his one eye. So ये स्टोरी है एक मनी लेंडर और एक फार्मर की. मनी लेंडर बहुत ज्यादा ग्रीडी था, चालाक था. उसने एक पुअर फार्मर को फंसा लिया था, बट बड़ी मुश्किल से वो फार्मर निकल पाया, जिसमें उसको अपनी एक आंख भी गंवानी पड़ी. So let's start with the chapter. Once there was a farmer who suffered much at the hands of a cunning money lender. So एक बार एक फार्मर था and he was in the hands of a cunning means बहुत ही लालची money lender. Good harvest or bad harvest, चाहे फसल अच्छी हो, harvest means फसल. So चाहे फसल अच्छी हो या खराब हो, the farmer was always poor and the money lender rich. So farmer हमेशा poor ही रह रहा था और money lender और भी ज़्यादा rich होता चला जा रहा था. At last, when he hadn't a farthing left, the farmer went to the moneylender's house and said, "You can't squeeze water from a stone. As you have nothing to get from me now, you might tell me the secret of becoming rich." So यहाँ पे जो है at last when he had farthing left means जब moneylender के जब farmer के पास कुछ भी नहीं बचा, तो the farmer went to the money lender's house. तो farmer money lender के घर जाता है और बताता है, उससे बोलता है कि आप एक स्टोन, एक पत्थर में से पानी को नहीं निचोड़ सकते. Means you cannot squeeze. Squeeze means निचोड़ सकते. As you have nothing to get from me now. अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ. You might tell me the secret of becoming rich. आप मुझे वो सीक्रेट बता दो जिससे कि अमीर होते हैं. My friend, replied the money lender piously, riches come from Ram. Ask him. So money lender ने कहा कि मेरे दोस्त, रिच होना इतना आसान नहीं है, ये भगवान बना के भेजते हैं, उनसे जाके पूछो. Thank you, I will, replied the simple farmer. फार्मर ने कहा ठीक है, अगर राम ही बताएंगे इसका सोल्यूशन तो मैं उनसे जाके पूछूंगा. So he prepared 3 griddle cakes to last him on the journey and set out to find Ram. So अब जो है मनी लेंडर जो है उसने 3 जो है मतलब केक के पीसेस बनाए, कुछ खाने का सामान रखा अपने पास और वो एक यात्रा पे निकल गया, जर्नी पे निकल गया. क्यों? टू फाइंड राम, राम को ढूंढने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए. फर्स्ट ही मेट अ ब्राह्मण एंड ही गेव अ केक टू हिम. सो उसने जो है एक ब्राह्मण से मिला, उसको वो केक दिया. आस्किंग हिम टू पॉइंट आउट द रोड टू राम. सो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे वो रोड दिखा दो जिसपे मुझे राम मिलेंगे. बट द ब्राह्मण ओनली टुक द केक एंड वेंट टू हिज वे ऑन हिज वे विदाउट अ वर्ड. तो ब्राह्मण ने वो केक तो ले लिया लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया. नेक्स्ट द फार्मर मेट अ जोगी. और फार्मर एक जोगी से मिलता है और डिवोटी एंड ही गेव अ केक टू हिम without receiving any help in return. So अब उसने जोगी को भी केक दिया, उससे भी पूछा और जोगी ने भी कोई इसकी हेल्प नहीं की. At last he came upon a poor man sitting under a tree. So वो फार्मर जो है पुअर मैन के पास जाता है, गरीब आदमी के पास जाता है, वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है. And find out he was hungry. तो उसने देखा कि वो पुअर आदमी जो बहुत ज्यादा हंग्री था, भूखा था. The kind farmer gave him the last cake and sitting down to rest beside him entered into the conversation. So पुअर आदमी को
उस फार्मर ने वो केक पकड़ाया, वहीं पे वो बैठ गया आराम करने के लिए। एंड वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड द पुअर मैन एट लेंथ। सब उनकी बातें शुरू हो गई। अब पुअर मैन पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ओह आई हैव अ लॉन्ग जर्नी बिफोर मी, फॉर आई एम गोइंग टू फाइंड राम। तो फार्मर ने कहा कि मैं तो अभी बहुत लंबा जाना है, मुझे राम को ढूंढना है। रिप्लाइड द फार्मर, आई डोंट सपोज यू कुड टेल मी विच वे टू गो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बता पाओगे कि राम कहाँ मिलेंगे। Perhaps I can, said the poor man. Poor man ने कहा कि मुझे पता है। Smiling, for I am Ram, क्योंकि मैं ही राम हूँ। What do you want of me? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? Then the farmer told the whole story, and Ram, taking pity on him, gave him a conch shell and showed him how to blow it in a particular way. So जो है पुअर मैन ने, वो जो राम था, उसने फार्मर को कुछ दिया। वो एक शेल था जिसको किसी तरीके से बजाया जा सकता है। रिमेंबर, वॉट एवर यू विश फॉर, यू हैव ओनली टू ब्लो द कॉन्च दैट वे एंड योर विश विल बी फुलफिल्ड। तो राम ने बोला कि तुम्हें जो है, जो भी तुम्हारी विश है, तुम्हें क्या करना है, बस इसको बजाना, उस तरीके से बजाना, तुम्हारी सारी विश पूरी हो जाएगी। ओनली बी केयरफुल ऑफ दैट मनी लेंडर, उस मनी लेंडर से सावधान रहना। फॉर इवन मैजिक इज नॉट अ प्रूफ अगेंस्ट हिज वाइल्स। सो यहाँ पे पोएट राइटर ने कहा कि जो हमारा फार्मर जो पुअर मैन है, उसने बोला कि मैजिक जो है उसके देने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। मीन्स आप उसको प्रूव मत करने लग जाना कि नहीं मेरे पास एक मैजिक है। द फार्मर वेंट बैक टू हिज विलेज रिजॉइसिंग। तो फार्मर अब अपने घर जो है वापस चला जाता है, विलेज वापस चला जाता है। इन फैक्ट द मनी लेंडर नोटिस्ड हिज हाई स्पिरिट्स at once and said to himself, some good fortune must have befall the stupid fellow. So जैसे वो फार्मर अपने गांव में वापस लौटता है तो मनी लेंडर उसे देखता है, उससे लगता है कि ये इतना खुश क्यों है, जरूर इसे कोई ना कोई चीज मिली है, इसलिए इतना खुश है। To make him hold his head so jauntily, therefore he went over to the simple farmer's house and congratulated him on his good fortune. In such cunning words, pretended to have heard all about it, that before long the farmer found himself telling the whole story, all except the secret of blowing the conch, for which, with all his simplicity, the farmer was not quite such a fool as to tell that. So अब क्या हुआ, वो जो मर्चेंट था वो जाता है, जो मनी लेंडर है वो जाता है फार्मर के घर, क्योंकि उसने देखा कि वो बहुत ज्यादा खुश से आ रहा है। तो अब क्या करता है, वो वहां जाता है और फार्मर के सामने ऐसे बिहेव करता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि तुम्हें सब कुछ मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेट। वो ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है उस फार्मर को कि जैसे उसे सब बात पता है, उसने फार्मर की और पुअर मैन की सारी बातें सुन रखी हो। तो वो ऐसे बात करने की कोशिश करता है कि अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो क्या पता ये जो फार्मर है वो मुझे असली सच्ची बात बता दे। अब क्या होता है कि फार्मर उसे सारी बातें बता देता है कि मेरे को ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, बात उसे सारी बातें बता दी। बट फार्मर ने ये नहीं बताया कि वो जो कॉन्च उसे मिला था उसके अंदर उसे कैसे ब्लो करना। For with his simplicity, the farmer was not quite such a fool as to tell that. फार्मर ने ये बात नहीं बताई उसे। Nevertheless, the money lender was determined to have the conch by hook or by crook, and as he was villain enough not to stick the trifles, he waited for a favorable opportunity to steal the conch. So अब जैसे ही मनी लेंडर ने ये सारी बातें सुनी तो उसके अंदर लालच और बढ़ गया और वो उस कॉन्च को किसी भी तरीके से लेना चाहता था, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी वो उसे लेना चाहता था। तो उसने जो है एक अच्छा मौका ढूंढने की कोशिश की कि एक अच्छी से मौका मिले मुझे, फेवरेबल अपॉर्चुनिटी मिले मुझे जिसमें मैं ये चुरा सकूं। स्टोल मीन्स चुरा सकूं। बट आफ्टर
nearly bursting himself with blowing the conch in every conceivable way, he was obliged to give up the secret as a bad job. However, being determined to succeed, he was back to the farmer and said calmly, "Look here, I have got your coat." So क्या हुआ? उसने जो मर्चेंट ने that man उसने जो है उस कोच को चुरा लिया था उस फार्मर से, बहुत ज्यादा उसको ब्लो करने की कोशिश की, बट क्या हुआ कि ऑल हिज एफर्ट्स गॉन इन वेन, इस सारे जो भी एफर्ट्स थे वो खत्म हो गए। लास्ट में फार्मर के पास वो मनी लेंडर आता है और कहता है, लुक हियर आई हैव गॉट योर कोच, मैं तुम्हारा कोच तुम्हारे पास वापस ले आया हूँ। So, but I can't use it. You haven't got it, so it's clear you can't use it either. So मनी लेंडर ने बोला कि मैं इसको बजा नहीं पाया, मैं इसको यूज नहीं कर पाया, अब मुझे नहीं लगता कि तुम भी इसे यूज कर पाओगे, जब मुझसे नहीं बजा तो तुमसे क्या बजेगा ये। The matter is and at stand still unless we make a bargain. Now I promise to give you back your conch and never to interfere with you using it on one condition, which is this: whatever you get from it, I am to get double. सब उसने बोला कि जो फार्मर ने से बोला उस ग्रीडी पर्सन ने कि ये तो अब मुझे नहीं लगता तुम्हारे किसी काम का है, लेकिन मैं तुम्हें तभी वापस करूंगा जब तुम क्या करोगे, तुम इसको यूज करो, और अगर तुम्हें इससे कुछ मिलता है तो मुझे उसका डबल मिलेगा, तभी मैं तुम्हें ये रिटर्न करूंगा। नेवर क्राइड द फार्मर। तो फार्मर ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। दैट वुड बी द ओल्ड बिजनेस ऑल ओवर अगेन। तो फार्मर ने कहा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। Not at all, replied the wily money lender. You will have your share. Now don't be a dog in the manger. For if you get all you want, how can it matter to you if I am rich or poor? So उस मनी लेंडर ने उसको जो है फार्मर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की। उसने बोला कि you will have to have your share. तुम्हें जो भी चीजें मिल जाएंगी, तुम इतने लालची मत बनो, और फॉर इफ यू गेट ऑल यू वांट, जो भी तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है मैं रिच हूं या पुअर हूं। एट लास्ट थॉट इट वेंट सोरली अगेंस्ट द grain to be of any benefit to the money lender. The farmer was forced to yield, and from that time, no matter what he gained by the power of the conch, the money lender gained double. This knowledge was so preyed upon the farmer's mind day and night that he had no satisfaction of anything. So अब क्या होता था, मतलब उसको फार्मर को उसकी बात माननी ही पड़ी, और जो भी चीज वो अपने लिए लेता था उसका डबल उसको मनी लेंडर को देना पड़ता था। तो अब इससे लास्ट में क्या हुआ कि जो मनी लेंडर था उसके दिमाग में ये बात एकदम भर गई कि मैं जो भी चीज लेता हूँ उसका डबल इसको देना पड़ता है या मिल जाता है। सो अब मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए। Now let's come to know more. Indian government introduced the new currency of 2,500 in November 2016, as we already know. At last there came a very dry season, so dry the farmers' crop. So एक dry season आया जिसमें farmer के सारे crop dry हो गए. Whether to want of rain. So उसने बारिश के बारे में सोचा कि बारिश मुझे मिल जाए. Then he blew the conch and wished for a well to water them, and lo, there was a well, but the money lender had two. So अब जो भी चीज फार्मर के पास आती थी उसका डबल मनी लेंडर के पास आता था। तो मनी लेंडर ने वेल मांगा तो फार्मर ने वेल मांगा तो मनी लेंडर के पास दो वेल आ गए। Two beautiful new wells. This was too much for a farmer to stand.
and our friend brooded over it and brooded over it till at last a bright idea came to his head. अब उस फार्मर के दिमाग में एक आइडिया. He seized the conch, blew it loudly and cried out, "Oh Ram, I wish I to be blind in one eye." So उसने क्या किया? कॉन्च को बंद किया अच्छे से और उसने तेज से चिल्लाया और भगवान से बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक आंख से अंधा हो जाऊं. And so he was in the twinkling, but the money lender of course was blind in both. तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भी चीज उस फार्मर को लिखने वाली थी, एक उसका दुगना मिलेगा मनी लेंडर को, तो ऐसे ही हुआ. फार्मर ने बोला कि मेरी एक आंख खराब हो जाए, मैं एक आंख से अंधा हो जाऊं, सो मनी लेंडर के साथ उसका दुगना हुआ, मीन्स मनी लेंडर की दोनों आंखें खराब हो. And in trying to steer his way between the two new wells, he fell into one and was drowned. So अब जो है मनी लेंडर जो है दोनों वेल्स के बीच में से निकलने की कोशिश में एक वेल में गिरता है और डूब जाता है. Now this true story shows that the farmer once got the better of the money lender, but only by losing one of his eye. So फार्मर हमेशा उस मनी लेंडर से अच्छा चाहता था कि उससे ज्यादा मुझे मिले. सो उसके साथ ये बेटर तभी हुआ जब उसने अपनी एक आंख गंवाई. So children, this was the story. In this story we have learned about the importance of money and that we should not ditch anyone. हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए. Now let's do the book exercise. The farmer suffered by a cunning fox, landlord, moneylender, teacher. Moneylender is the correct answer. The farmer said to the moneylender, "You can't squeeze water from the stone." The farmer meant that the moneylender cannot squeeze the stone anymore for water. Use stone to get water from his house. Get anything from the farmer as there was nothing left in his house or none of these. So C is the correct answer. The moneylender told the farmer that to become rich, he will have to meet. So moneylender ने क्या बोला? He has to meet Ram. Whom did the farmer meet first in his way? So the farmer first made a Brahmin on his way. Now children, you have to read the following sentences carefully and tell who said these to whom. So this you have to do on your own. Now let's come to true and false. The money lender was an honest man. No, this is false. Good harvest or bad harvest. The farmer was always poor. This is true. The money lender told the farmer to find Ram to become rich. This is also true. So children, rest 4 questions you have to do on your own. Now let's come to the question and answers. What happened when there was nothing left with the farmer? So when there was nothing left with the farmer went to the money lender's house and said that you cannot squeeze water out of a stone. So please tell me the way of becoming rich. So children, we have done the first question. Rest questions you have to do on your own. So children, this was a quite interesting story. I hope that you understood it. And I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, you have to stay late.